आपके पास बस यही है, अब तो ऑनलाइन अप्लाई होता है, सही। ठीक है, वो इधर एम्बेसी में भी इशू नहीं होता। आता है ईमेल आता है visa.nadra.gov.pk, ठीक है, थोड़ा खाली सकते हैं यार جی السلام علیکم. ابھی کچھ ہی دیر میں وزیر خارجہ صاحب، پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان ایمبیسی کا دورہ کریں گے، اور اس دوران اس دورے کے موقع پر جو ہے وہ پاکستان ایمبیسی میں فٹ بال کارنر کا جو ہم کہتے ہیں فیفا کے اندر جو پاکستان کا کردار ہے فٹ بال فراہمی کے حوالے سے، اس حوالے سے اس کارنر کا افتتاح کریں گے. تو شاہ محمود قریشی صاحب اپنے ہوٹل سے نکل چکے ہیں، ودن 2 منٹس میں یہاں پہنچ جائیں گے. یہاں پر جرمن پولیس سیکورٹی جو ہے وہ موجود ہے، اور انہوں نے تمام چیزیں ارینج کی ہوئی ہیں، چاروں طرف انہوں نے سیکورٹی لگائی ہوئی ہے بہتر انداز میں، اور یہ ان کی گاڑیاں جو ہے یہاں پہنچ گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان ایمبیسی کے دورے پر پہنچ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے لائف آپ کو دکھا رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان ایمبیسی پہنچے ہیں. ان کے ساتھ پاکستانی سفیر وہ موجود ہیں، اور وہ یہ مطیع اللہ صاحب لوکل جرنلسٹ ہیں. السلام علیکم. السلام. شاہ صاحب خیر سے ہیں؟ آپ سے ملاقات ہوئی پہلے؟ یہ جنہوں نے کام کیا تھا وہاں پہ سر، یہ کشمیر والا سوال ہے. یہ ہمارے ساتھ لینگویج بتاتے ہیں، لینگویج ٹریننگ کر رہے ہیں. جو شاہ محمود قریشی صاحب کو اردو کہا گیا ہے. جنرل صاحب سے فرینکفرٹ ہمارے انٹرنیشنل کانسلر سے فرینکفرٹ پر آپ سے ملاقات نہیں کی ابھی، میں نے اسی لیے بلوایا کہ تھوڑا سا پیچھے آئیے دو چیزیں ابھی آپ کہہ رہے تھے نا سر، یہ فٹ بال کارنر پاکستان میں ہر سال 50 ملین فٹ بال ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے فٹ بال اسپیکر ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے ان کی ایفرٹس کو اکنالج کرنے کے لیے. جرمنی نے 2014 میں جو فٹ بال جیتا تھا یہ برزوکا، اس کے بعد بہت پاپولر ہو گیا پاکستانی فٹ بال یہاں پر. اب ہم تقریباً 4.5 ملین فٹ بال جرمنی ہر سال ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اٹس ایکسپینسو کموڈیٹی. آپ گروسری اسٹورس پہ جائیں، نارمل آلڈی ڈیل وغیرہ پر، وہاں پاکستانی میڈ فٹ بال آپ کو ملے گا، اور تقریباً 150 یورو کا جو ہے ایک یونٹ ہے. بہت پوٹینشیل ہے. سفیر صاحب میٹنگ بھی کر رہے ہیں، جو بنڈس لیگا جو سب سے بڑا کلب ہے ان سے بھی ملے ہیں. ایکسپینڈنگ دس مارکیٹ ٹائم اور بیسٹ پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. کلبس میں سیل کریں گے تو انٹروڈکشن آف پاکستان جرمنی یہ بلاک کے ساتھ سر آپ سے نامنیٹ کرانے اچھا سا ویڈیو. ہاں جی نیکسٹ ون. افسر سے بریف کریں. اس کے لیے سر ہمیں ایک کائنڈ آف ہیلتھ اسسٹنٹ جو ہے امیڈیٹ اس کے لیے ہمیں آفس کرنا ہے ارجنٹلی.
तो यहाँ पे हमारा स्टाफ होगा, वो उनको हेल्प करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करने में, ये ऑनलाइन। This will be in German or in English? सर नॉर्मली हमारे साथ जैसे English. लेकिन अगर कोई जर्नल का इशू होता है तो This lady has been hired for to sit here and facilitate. Female or soft image भी आता है और Thank you very much. please. ये आपने ये हो गया ना जी आप सक्सेसफुल. This would be required everywhere. Because हर जगह ये ये उसने आमना ने शुरू किया था इन कोलालमपुर. इस किस्म का उससे बड़ा सर्विस सेंटर ने किया था और people have really benefited from that. सर कोई एक दो बात है कम्युनिटी में से हम लोगों ने कम्युनिटी के मेंबर्स आए हैं, ये सामने के बात है कश्मीर के हवाले से हुक्म करें हम आपकी जेल में कभी हमारी मदद करते रहते हैं. कश्मीर खासतौर पे प्रोटेस्ट और सारा कुछ अच्छे लोग हैं. हमारे कम्युनिटी के लोग कुछ तो बता सकते हो. बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जो शनाख्ती कार्ड और उनकी POC की फीसेज है बहुत ज़्यादा है. तो वो कई लोगों को जानते हो जिनके पास आज के जो हालात इतने अच्छे नहीं हैं लोगों के माशाल्लाह. अगर इनकी फीस कुछ कमी हो जाए और इसके बाद जो नादरा को अगर जो यहाँ क्या है फीस इस वक्त? $190 यूरोस और डॉलर्स? और अगर डायरेक्टली इनके एक्सेस मिलते हैं जो यहाँ बैठेंगे आपने बताया था कल ना, वो हमारे लिए बेहतर होगा. एक्सेस तो मिल जाएगी. वो तो हमने नादरा के एक्सेस नादरा एक्सेस ये कि जाहिर है कि फिल हो जाएगा मगर उसको चेंज जो नादरा ही कर सकता है, वो तो यहाँ नहीं हो सकता. मगर फिलिंग में हेल्प हो जाएगी. एक रिक्वेस्ट का प्रोसेस भी है कि फैसिलिटेट कर दें, जल्दी कर दें, वो सारा कुछ होगा. और ये फ्रैंकफर्ट में भी इंशाल्लाह मेरे साथ शुरू करें वहाँ पे You put up the new map. सर we have done that. ठीक है आइए सर. Thank you. पर्सनल मीडिया भी है. भाई मैं अब मैं आप लगाएं आप दिखा दो. आपकी बड़ी मुलाकात कम्युनिटी से नहीं हो सकी, कोरोना है तो हमें थोड़ा सा ये आप क्या भी देंगे जरा थोड़ा सा कवर. उसकी वजह ये है कि मसला सब्सिडिस है ना, तो इसलिए शायद रुके हुए हैं. लेकिन इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है कि लोगों को उस सानिया का दुख भी हुआ और उसकी सबने मजम्मत भी की. और मैं तो ख़ास तौर पे वहाँ गया था, काजी साहब से मुलाकात हुई थी, आपकी बाकी जो साहिबान हैं, गंडापुर साहब हैं, बाकी हैं, सबसे मुलाकात हुई थी. जुल्म भी बड़ा इसमें कोई शक नहीं. बहुत मासूम लोग उससे मुतासिर हुए थे. तो ये प्रोसेस है. आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ प्रोसेस ज़रा लंबा होता है, तकलीफ दह होता है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है. इंशाल्लाह आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा. एक सवाल याद कर लें, कुछ यहाँ पे
देखिए हमारी कोशिश है कि हम सब कानून का एहतराम करें और हम लोगों को कायल भी करते हैं। लोगों की मुश्किलात भी होती हैं, लोगों के जज्बात भी होते हैं, लोगों की दिल आज़ारी भी होती है, उसको भी सामने रखना होता है। और मेरी राय में उसके इजहार के मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं। उन फोरम्स के ज़रिए हम अपनी बात कर सकते हैं। अगर हम कानून को हाथ में लेंगे तो उससे मकामी तौर पे भी मुल्क का नुकसान होगा और इंटरनेशनली भी जो पाकिस्तान का इमेज है वो मुतासर होगा। और फिर जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं तो वो कोई मनफी ख़बर जो पाकिस्तान से मंसूब हो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तो इस पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है और शहरियों की ज़िम्मेदारी भी है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई मुनासिब रास्ता निकल आएगा। सही सर, ये बताइएगा, ये जो जर्मनी के अंदर तकरीबन हज़ारों महाजरीन हैं, पाकिस्तानी जो इक़्तिसादी महाजर हैं, हम जॉब करते हैं, उनके मसाइल हैं और गुज़श्ता एक साल से यहाँ से डिप्रेशन हो रही है, लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो उस हवाले से पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है इस हवाले से कि पाकिस्तानी जो डिप्रेशन जो हो रही है उनको रोका जाए या उनको यहीं पर उनको जॉब्स के हवाले से जो उनको यहाँ अच्छे खास लेबर की ज़रूरत भी है, तो उस हवाले से बात हो सकती है जर्मन हुकूमत के साथ कि ताकि जो तारकीन वतन है उनको डिपोर्ट करने के बजाय उनको यहीं पर स्टेबल किया जाए या ताकि उनको यहीं पर डिप्लोमा किया जाए या बिल्डिंग कराया जाए ताकि वो यहीं रह जाएँ, उनको वापस ना भेजा जाए। कल बात हुई है, इस मौजू पे बात हुई है। वज़ीर ख़ारजा से मैंने ये नुक्ता उठाया था कि हमें कानूनी ज़राए तलाश करने हैं ताकि जो लोग यहाँ आए हैं वो अब्ज़ॉर्ब हो सकें और जो आना चाहते हैं उनके लिए माकूल गुंजाइश मौजूद हो और एक ऐसी विन विन सिचुएशन क्रिएट हो कि आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाए और वो लोग जो इकनॉमिक रीजंस के लिए माइग्रेशन अख्तियार करना चाहते हैं उन्हें बावकार रोज़गार मिल सके। अगर आप ऐसा रास्ता तलाश नहीं करेंगे तो ज़रूरतमंद तो हर रास्ता अख्तियार करेगा, कानूनी भी और गैर कानूनी भी। और जो गैर कानूनी रास्ता अख्तियार करके आते हैं फिर दिक्कतें होती हैं, कानून हरकत में आता है। पाकिस्तान का और बहुत से ममालिक, सिर्फ पाकिस्तान से तो नहीं आते, सारी दुनिया से आते हैं। जितने डेवलपिंग वर्ल्ड है, ईस्टर्न यूरोप के बहुत से लोग आए, आपने देखा यहाँ आए, तो उससे फिर मुश्किलात आपके लिए भी पैदा होती है। फिर आपकी सियासत पे एक तबका है जो उसको एक्सप्लॉइट करता है और एक जो एक्सट्रीमिस्ट तबका है, फार राइट जो है, उसको सियासी नुक्ता नज़र उसका जो है उसको उठाता है, आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है। तो हमें कोई लीगल चैनल्स तलाश करने चाहिए। आपकी ज़रूरियात तो होंगी, आपकी इकॉनमीज़ ने ग्रो करना है, आपकी एजिंग ग्रेइंग पॉपुलेशन है, तो हम देखें कि किस तरह हम एक विन विन कोऑपरेशन इसमें पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को नोट भी किया और मुझे उम्मीद है कि इस पर हम बात करेंगे। हमारा जो यूरोप के साथ स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान है वो भी फोरम हमारे पास मौजूद है और उस पर भी मैंने इस मुद्दे को उठाया था और इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे ताकि कोई रास्ता निकले। ये आखिरी सवाल आपका, क्विक ज़रा छोटा। जी, मैंने जो यहाँ नुक्ते उठाए थे और मैंने जो वो सेक्टर्स जिन सेक्टर्स में हमारा बाहरी ताउन हो सकता है और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, उसमें एक सेक्टर जो मैंने मेंशन किया था वो आईटी का है। बेपना पोटेंशियल यहाँ ज़रूरत भी है और हमारे पास टैलेंट भी मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि जर्मनी के पास बेपना मौक़े हैं, वो वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी में रोल प्ले कर सकते हैं, टूरिज़्म में रोल प्ले कर सकते हैं, सोलर एनर्जी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो वहाँ मैंने आईटी का जिक्र भी किया। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा जो आइंदा इंटरेक्शन होगा इस पर बात होगी। थैंक यू। One last question, if you don't mind. साइंस जर्मनी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी बस गई है, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि यहाँ एक बड़ी माकूल तादाद में गालिबन 5000 के लगभग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ हैं। हमारे नौजवानों को ये ज़हनशीं करना चाहिए कि
पाकिस्तान के तस्वुर देने वाला, ख्वाब दिखाने वाला, उसकी तालीम भी जर्मनी में हुई। तो जर्मनी के साथ आपके एक तारीखी जो है एक लगाव और एक मिलाप है वो मौजूद है, और वो इकबाल भी यहाँ तालीम के सिलसिले में आए थे। मेरी कोशिश होगी, हमारी कोशिश होगी कि इनका जो हमारी हायर एजुकेशन कमीशन के साथ जो इनकी अरेंजमेंट है उसमें वसअत पैदा हो, स्कॉलरशिप्स और मिलें, और जर्मनी एक हमारी मुस्तकबिल की, हमारे स्टूडेंट्स की डेस्टिनेशन बन जाए। जैसे एक ज़माने में बरतानिया है, अमेरिका, कनाडा, इसी तरह मैं समझता हूँ जो अगली डेस्टिनेशन मुझे दिखाई दे रही है वो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी है। तो बिल्कुल इस पर फोकस करने की ज़रूरत है और इस पर बात होगी। हाँ, एक और अच्छी आपको जो कम्युनिटी को मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ वो ये है कि क्योंकि जर्मनी के साथ हमारे ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। हम अपनी इकनॉमिक रिलेशनशिप यहाँ मजबूत करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और उसके इम्कानात भी खासे रोशन हैं। तो इन ज़रूरियात को सामने रखते हुए हमने फ़ैसला किया है कि म्यूनिख में एक नया हम काउंसलेट खोलेंगे, एक काउंसिल जनरल तैनात करेंगे, ताकि एक बर्लिन के बाद एक अहम नुमाया शहर है जर्मनी का, ताकि हमारी वहाँ प्रेजेंस भी हो जाए और जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे डायस्पोरा है, उसको सहूलत हो जाए। और पाकिस्तान में जितने इलाके हैं वहाँ पर आजकल सिक्योरिटी होती है। हमें POC दिया गया है, हम POC वाले लोग हैं। पाकिस्तान में बहुत चेकिंग होती है और पाकिस्तान मुझे अपने घर नहीं जाने देते। ये वहाँ मसला है POC वालों का। तो अगर इस बार कोई ऐसी कोई नज़रसानी करेंगे कि POC बदली हो जाए, वजह सर क्योंकि वहाँ आर्मी होती है, सिक्योरिटी है, वो चेक करते हैं। सही नहीं, उसमें सारे पाकिस्तान में तो नहीं ना, एक ख़ास जगह है उसकी जो उसकी वजूहात है वो आपके इल्म में है। वो एक सेंसिटिव एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया है, तो वहाँ के तकाज़े थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन बाकी तो अच्छा जी, चेक कर लेंगे, जो हो सकेगा कर लेंगे। हाँ, वी हैव टू मूव। नहीं, ये सवाल ख़त्म नहीं हो सकेंगे, आप बस कर दें प्लीज़। ये आगे ऊपर भी मीटिंग है, प्लीज़ ये बता प्लीज़। थैंक यू। आइए सर, आइए। थैंक यू वेरी मच। आइए। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अरसे से हम इंतजार कर रहे हैं, सभी सर उस पर काम भी कर रहे हैं। प्रेस वो कॉन्फ्रेंस बताया नहीं, बताया कि एक जगह है, एक सारा अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। थैंक यू सर जी। हेल्प कर दो। नहीं बस मैं थैंक यू जी। ये आप लोगों ने सुना, देखा, और ये हाल है, और उसके बाद ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा।